Welcome back to our channel. Today we are going to read the most famous poem of Walt Whitman, "O Captain, My Captain." Let's start. First of all, we will see the main topics of the poem, key facts. "O Captain, My Captain" is poem by Walt Whitman. Genre elegy. Whitman wrote this after the assassination of 16th President of USA, Abraham Lincoln. Written in 1865, this poem has three stanza of 18 of 8 lines. And then we will see the main background of this poem. "O Captain, My Captain" is one of the Walt Watson's most famous poems. Written in 1865 in the aftermath of the assassination of President Abraham Lincoln. And this poem was written shortly after the end of the American Civil War and the assassination of the President Abraham Lincoln on April 14, 1865. Lincoln's death deeply affected the nation, and Whitman, like many Americans, mourned the loss of the beloved leader. Okay, then, and then we will see the symbols. This poem has two meanings. First of all, Captain Abraham Lincoln, ship USA, voyage, and the voyage represent the nation's journey through the Civil War with its trials, sacrifices, and ultimately the attainment of victory and freedom. Anchors. The anchor symbolize stability, security, and perseverance. They represent the foundation upon which the nation is built and the determination to weather the storm of adversity. O- Okay, then. Now our poem is start. "O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has reared every wreck, the prize we sought is won. The port is near, and the bells I hear, and the people all exulting, while follow I the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my lies, fallen cold and dead." तो देखिए, "ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन"। वॉल्ट विटमैन अब्राहम लिंकन को अपना कैप्टन मानते हुए बोलता है कि "ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन"। हमारी भयानक यात्रा अब पूरी हुई। "द शिप हैज़ रेतर्ड एवरी रैक", जो हमारा जहाज है वह हर खतरे से बच गया। "द प्राइज वी सॉट इज वॉन", और जिस इनाम को हम खोज रहे थे वह जीत है जो कि अब हमें मिल चुकी है। "एंड द पोर्ट इज नियर एंड द बेल्स आई हियर एंड द पीपल ऑल exulting while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring." "द पोर्ट इज नियर", अब हमारे बहुत ही पास है बंदरगाह। "एंड द बेल्स आई हियर", और मैं घंटियों की आवाज़ों को सुनता हूँ। "एंड द पीपल ऑल एक्सल्टिंग", और जो किनारे पर खड़े लोग हैं वह बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और "वाइल फॉलो आई द स्टडी कील", और मेरी आंखें उस स्थिर जहाज का अनुसरण करती है जो कि कठोर और उत्साहपूर्ण है। डेयरिंग का मतलब उत्साहपूर्ण। "बट
ओ हर्ट, 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 लेकिन हृदय से, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, उसके हृदय से लाल रक्त की बूंदें बह रही हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ मेरा कैप्टन जहाज के फर्श पर पड़ा हुआ है। फैलन कोल्ड एंड डेड, बिल्कुल ठंडा और मृत अवस्था में। ठीक है। O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you buckets and ribbon wreaths, for you the shores a crowding, for you they call the swaying mast, the eager faces turning. Here, Captain, dear father, and this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. O Captain, my Captain. ओ मेरे कैप्टन, अप एंड हियर द बेल्स, उठो और उन घंटियों की आवाज़ों को सुनो। राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, और देखो तुम्हारे लिए जीत का झंडा भी है। फॉर यू द बुगल ट्रिल्स, और तुम्हारे लिए बिगुल को बजाया जाता है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्ड रेट्स, फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, और तुम्हारे लिए फूलों के फूलों के गुलदस्ते हैं और रिबन लगी हुई मालाएं हैं। फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, और तुम्हारे लिए किनारे पर खड़े लोगों की भीड़ है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, और तुम्हारे लिए हिलते हुए जन समूह हैं। द ईगर फेसेस टर्निंग, और उनके उत्सुक फेस तुम्हारे ही ओर मुड़े हुए हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, अब यहाँ पर वॉल्ट वॉटसन की घनिष्ठता और अधिक हो गई है, इसलिए वो अब्राहम लिंकन को अपने डियर फादर के रूप में संबोधित करते हैं। दिस आर्म दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये भुजाएं आपके सर के हमेशा नीचे ही थी। एंड इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, और ये सपने जैसा है कि आप मेरे ही आंखों के सामने यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, बिल्कुल ठंडे और मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक है। अगला स्ट्रेंजर देखते हैं 8 लाइन्स का। My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He is no pulse nor will, and the ship is anchored safe and sound. Its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck. My captain lies fallen cold and dead. माई कैप्टन डज नॉट आंसर, अब मेरे कैप्टन उत्तर नहीं देते हैं। उनके होठ अब उनके होठ अब पीले और स्थिर हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, अब मेरे पिता मेरी भुजाओं को महसूस नहीं करते हैं। ही इज़ नो पल्स नोर विल, अब उनके शरीर में बिल्कुल भी धड़कन नहीं है और ना ही इच्छा है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जहाज का अब बिल्कुल सुरक्षित रूप से लंगर डाला जा चुका है। इट्स वोयज क्लोज्ड एंड डन, अब ये जो यात्रा है हमारी समुद्री, वह पूरी हुई और समाप्त हुई। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, हमारी भयानक यात्रा से जो हमारा विजेता जहाज है वह अपने लक्ष्य के साथ वापस आया है। एग्जल्ट, प्रसन्नता। ओ शोर्स एंड रिंग, ओ बेल्स, बट आई विद mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead। देखो वहाँ पर बहुत से लोग घंटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दुखपूर्ण चाल के साथ अपने
कैप्टन के पास जाता हूँ जहाँ वह ठंडे और मृत अवस्था में है। यह पोएम यहीं पूरी होती है।